try to tie me down, you could try to wear me out, pull me out in the rain, just gas on a flame, and you can't control what you can't control. You could try to tame the wild, you could try to blame this child, try to medicate me, call it ADHD, but you can't control what you can't control. Ooh, don't you know that you can't tame a cageless soul? Well, you got to let it go. This kind of love is a wild animal, and you can't tame a cageless soul. Hello guys and welcome back to another video. Today's ownership review will be of the Renault Kwid. So this is the front look of the car. You can see chrome grille over there, and let's see the headlamps of the car. So you can see halogen unit over here. This is the indicator, and this design kind of looks like a LED DRL, but this is the grille of the car. You can see big Renault logo over there, and you can see the fog lamp housing, halogen fog lamps as well, and this is the black finish on this car. This is the tow hook, which looks kind of nice, diffuser sort of treatment, and this is the overall front look of the car. Now let's move to the side, and you can see the look is inspired from the Renault Duster for sure. So let's talk about the wheels of the car. So these are the steel wheels, and the size happens to be 165, actually 155 80 R13, so 13 inches wheel, indicator on the fender, and these are the black ORVMs of the car. If you want to see the overall look of this car, so side look of this car, so here it is. You can see the body cladding looks very nice on this car, and you can see chrome door handle, which is aftermarket for sure, RXL variant badging over there. And let's move to the rear of this car. So you can see the overall rear look is like this, SUV-ish type of design, and dual tone bumper. Black is used to reduce the visual bulk. And straight away let's see the tail lamps of this car. So you can see no LED used over there, bulbs all over the place, and chrome, which is aftermarket. This is the high mount stop lamp, and Renault logo, Kwid badging over here, which looks nice, Renault badging once again. And let's see the boot of this car. So here we go. This is the boot space of the car. You can see a decent amount of boot space, and let's see the spare wheel. So this is the same size spare wheel, 155 80 R13, and the boot is very nice. In fact, this is the biggest boot in the segment. You do not get any kind of night lamp as such, no insulation as well, but at least nothing is exposed, so that is a nice thing. And this is the overall rear look of the car. There is the, what we can say, this is the bull guard, okay, which is illegal, so don't use this. And let us see the space of this car. So this is the rear door first of all, and you can see all black interiors over here, and no soft touch, nothing of those sorts. So let's sit inside the car, and here you can see the space. So my height is 5 feet 6 inches, and you can see I have decent amount of leg room, and under thigh support could be a bit better, because अगर मेरे 5'6" में यहाँ पे हाथ जा सकता है, then 5'9" and 5'10" will not be that much comfortable. 3 people will not be much comfortable, but 2 people will be comfortable for sure. The hump is not very big, and that is a nice thing. This is the overall dashboard design of the car, which is kind of nice. The car is a bit dirty right now, so pardon for that. And now let's move to the front. So here we go. The build quality is on the lower and poor side, but that is a considerable thing for a car which comes in this price point. So this is the front driver door, you can see, and here is some storage space as well, but along with the bottle holder. You can see elder sister coming. A lot of rattling in this car, that Duster, but let us sit inside the car and pull the seat all the way behind. So here I am. Let's close the door, and here we go. This is the steering wheel of the car. You can see very basic Renault logo over here. This is the piano black finish in the car, and these are the headlight controls, and this is the wiper control of the car. And you can see the MID, not the MID, actually the instrument cluster looks kind of nice. And now I'll turn the ignition on, and here we go. It has decent amount of things on offer. You can say turtle lights placed all over the vehicle, fuel consumption here, and these are the things. It has run 30,407 kilometers. This is the central console of the car. You can
can see two AC vents over here, silver finish all over the place. This is the music system, and let's do the audio test. The audio quality is very nice according to this price. So yeah, the quality is very nice. Here is some storage space as well, and you can see some AC controls over here. This is what I don't know, but I think here you can keep your coins and all those things. This is the hazard lamp switch over here. These are the bottle holders along with this gear lever, which is 5-speed manual, and if you want to push it into reverse, you have to pull it like this and then press it over there. So that is the thing. Here you can see the 12V charging socket. These are the bottle holders, and here is some bottle space. Once again, this is the handbrake of the car, and let's go to the upper side. Here is no vanity mirror sort of thing, but here's the sun visor. Here you can see the light placement, and this is the IRVM, which is not day night adjustable. This is the other side sun visor. Here is a lot of storage spaces, and this is the glow box of the car, which is small. So these are the all things, and the plastic is kind of hard in this car, but the fit and finish is very nice. Surprisingly, it has better fit and finish comparing to the Renault Triber actually, but the plastics are supremely hard, so quality levels are not that great. तो सबसे पहले ये गाड़ी की ओनर है, क्या नाम है आपको? महक। तो महक जी की ये गाड़ी है रेनो, तो कौन से मॉडल की गाड़ी है ये? 2018। 2 साल इनको पूरे हो चुके हैं, और कितना किलोमीटर चलाया है आपने? ये करीब 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। 30,000 किलोमीटर चला लिया है, तो अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस है वो हमको मिल जाएगा। लेकिन पीछे से एक MG हेक्टर आ रही है, तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप कितना माइलेज निकाल लेती हैं इस गाड़ी से? सिटी में अराउंड 18 to 20 और हाईवे में 22 करीब। तो काफी बढ़िया माइलेज है इस गाड़ी का। और भी कंपनियां, मतलब और भी जो एल्टो वगैरह इसके साथ आती थी, उन सबसे बेटर माइलेज इस गाड़ी में क्लेम होता था 25.17 का, बट आप हाईवे में 21 to 22 निकाल पाते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब पहला तो नहीं, माइलेज वाइलेज हमने पूछ लिया है, तो आपने यही गाड़ी क्यों चूज किया? मतलब इसके सेगमेंट में ऑल्टो भी आ रही थी, रेडिगो भी आ रही थी, बट क्विड लेने का क्या मतलब था? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका माइलेज बहुत अच्छा था। सेकेंडली लुक वाइज जो इसके कॉम्पिटिटर्स थे उसमें ये मुझे बेहतरीन लगी। प्लस बहुत कोई हाई मेंटेनेंस नहीं है गाड़ी का, तो मुझे ये अफोर्डेबल लगी, एंड सर्विस वगैरह का भी चार्ज बहुत हाई नहीं है, सो दैट्स वाई। तो सर्विस का इन्होंने जिक्र किया, कितनी सर्विस में करवा ली है आपने? 3 से 4 ऑलमोस्ट करा लिए मैंने। अच्छा, तो सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाती है इसकी? इसकी अगर आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करते हैं तो करीब 3500 to 4000 चला जाता है, एंड हाँ इतना। तो जो सर्विस सेंटर वगैरह के जो लोग होते हैं, उनका बिहेवियर आपको कैसा लगा? मतलब कि उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो भी सुनवाई है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं ये सारी चीजें? मुझे न्यूट्रल लगता है, बट मैक्स टू मैक्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता है, और कुछ ना कुछ गाड़ी में खराब हो जाता है, खराबी छूट जाती है। प्लस एक बार तो मेरी कार से फ्यूल भी चोरी हो चुका है। यार आप लोग पेट्रोल चुराओगे तो कैसे काम बनेगा? तो सर्विस सेंटर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव आप करें। भाई ये हम नहीं कहते, ये जो गाड़ी के ओनर होते हैं, जो गाड़ी को महसूस करते हैं, समझते हैं, उनका ये कहना होता है कि मतलब सर्विस सेंटर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव आप करें। तो अब इस गाड़ी के हमें कुछ पॉजिटिव्स बता दीजिए। पॉजिटिव्स ये है कि इसका स्पेस बहुत अच्छा है, प्लस आप इससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। ऑल्सो क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी अच्छा है, चाहे आप ऑल्टो ले लो या जो इयॉन आती थी इसके साथ में, उन सारी गाड़ियों से काफी ज्यादा बेहतरीन जो इसका हम कहेंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत आप खेत में ले जा सकते हैं, इनका कहने का ये मतलब है। जो थोड़ा ऊंच नीच चीजें हैं, मतलब ऑफ रोड आप एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बट हाँ काफी अच्छी इससे जो है आप खराब सड़कों पे चला सकते हैं। और प्लस इसका जो लुक है वो एक कॉम्पैक्ट SUV की तरह है। ऑल्सो शहर में चलाते हुए कभी कभार ठुकती ठकती रहती है, तो उसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखती है, तो काफ़ी सही है ये। प्लस इसका मेंटेनेंस बहुत हाई नहीं है, इजी टू मेंटेन कार है और बहुत अफोर्डेबल है। लाइक
अच्छी गाड़ी है। तो जो इन्होंने स्पेस की बात की थी, मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि मैं ऑल्टो में भी बैठ चुका हूँ, एस्प्रेसो में भी बैठ चुका हूँ, उसके अलावा इयॉन में भी। इसका जो रियर सीट स्पेस और कंफर्ट है वो मुझे सब गाड़ियों से बेहतर लगता है और बहुत बेहतरीन जो इसमें है कंफर्ट, इन छोटी गाड़ियों के मुताबिक काफी बढ़िया जो है वो लगता है। तो इन्होंने पॉजिटिव्स बता दिए, अब कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी होंगे इसके, तो वो आप जरूर बता दें। इसमें एक तो पावर विंडो नहीं है फ्रंट, प्लस इसमें जो फॉग लैम्प्स होते हैं वो नहीं दिए थे, तो वो मैंने एडिशनली अलग से लगवाया है। ऑल्सो इसका जो पेट्रोल चैम्बर है वो प्लास्टिक का है और काफी नीचे है, सो दैट जब भी मैं लाइक ऐसे थोड़ी भी गड्ढे हो या फिर कुछ ऊंचा सा हो उसमें ड्राइव करती हूँ तो नीचे टच हो जाता है, जो कि काफी नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ खास नेगेटिव नहीं है। देखिए, पेट्रोल चैम्बर नहीं, जो ऑयल चैम्बर है वो काफी ज्यादा नीचे दिया हुआ है। वो तो चलो एक बार चल जाता है, बट वो प्लास्टिक का है, तो काफी ओनर्स को ये इशू जरूर आता है कि वो अगर कहीं टच होता है तो फूट जाता है और उसके कारण जो है आपको पूरा चैम्बर बदलवाना पड़ता है। जैसे जो हमारा लोहे का चैम्बर होता है वो भी फूट तो जाता है, बट उससे प्रॉब्लम ये नहीं होती इतनी ज्यादा, क्योंकि वहां पे आप थोड़ी बहुत वेल्डिंग वगैरह करवा के लोहे का चैम्बर सही करवा सकते हो। बस प्लास्टिक जो होता है वो पूरा टूट जाता है, तो ये चीज है। तो अब आप ये बताइए कि काफी सारे लोग जो बोलते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब है, तो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैंने भी अभी जब थोड़ा चेक किया तो मुझे थोड़ा सा जो है डाउनर साइड पे लगा। क्या बोलेंगे उसके लिए? देखिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके जितनी भी कंपटीशन में कार्स है, जो भी कॉम्पिटिशन्स थे उसकी बिल्ड क्वालिटी भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं थी। उनके कंपैरिजन में इवन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इनकी अच्छी है। देखो भाई, पर्सनली ऑनेस्टली एज अ ओनर नहीं, बट हाँ अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दूं तो मुझे इस सेगमेंट में जो है वो हुंडई इयॉन की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है, सबसे बेहतरीन लगती है। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एज अ ओनर मैं बोल रहा हूँ। और जो फिट एंड फिनिश है वो भी हुंडई की काफी बेटर है, बट जिस टाइम उन्होंने ये गाड़ी ली थी उस टाइम थोड़ा सा आउटडेटेड सी जो इयॉन थी वो हो गई थी, तो ये चीज है। उसके अलावा इस गाड़ी को किस आदमी को आप, मतलब कैसे लोगों को आप प्रिफर करेंगे कि ऐसे आदमी को लेना चाहिए या जिनके ऐसे, और क्या आप इसे रिकमेंड करेंगे? ऑब्वियसली मैं इसे रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। अगर आप ये गाड़ी मैं उनको रिकमेंड करती हूँ जो लोग मोस्टली सिटी में ट्रेवल करते हैं, प्लस ऑल्सो आप अगर आउटडोर मतलब लॉन्ग टूर में जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो ये एक रफ एंड टफ गाड़ी है। तो जो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नॉर्मली डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बहुत लॉन्ग टूर पे जाते हैं, उन लोगों को मैं ये गाड़ी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही रफ एंड टफ है। तो हाँ, दैट्स इट। तो काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज करो, खराब तरीके से यूज करो तो बोल जाती है, इंजन में प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ है? एज सच तो मुझे ऐसा अब तक इतने साल के एक्सपीरियंस में नहीं फील हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ही रफ एंड टफ है। मैं बहुत बार पूरे दिन भी ड्राइव करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। देखिए, रफ एंड टफ से इनका ये मतलब नहीं कि बॉडी क्वालिटी काफी ज्यादा हाई रेटेड है, वो चीज नहीं, बट हाँ अगर आप इसे काफी ज्यादा यूज करोगे तो गाड़ी में प्रॉब्लम एज सच कोई नहीं आएगी। मैं इंजन की क्वालिटी की बात कर रही हूँ कि वो मतलब रफ एंड टफ है, तो इसमें कुछ ऐसी इतनी डेलिकेट सी गाड़ी नहीं है कि जरा से मैं बोल गई काइंड ऑफ ऐसा। अंडर पावर्ड तो नहीं लगती, मतलब जब आप चलाएं तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा और पावर होता, 1000 सीसी का इंजन होता, थोड़ा और मजा आता चलाने में, ऐसा कुछ? हाँ, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जब मैं एसी वगैरह ऑन करती हूँ तो हल्की सी एसी की वजह से हल्की सी गाड़ी दबी सी लगती है, बट एज सच मुझे इतना कुछ नहीं लगता, बट थोड़ी थोड़ी कभी कभार ऑब्वियसली लगता है। वेरी गुड। हाईवे पे जैसे हम जाते हैं किसी भी लॉन्ग टूर वगैरह में, तो आप भी गए होंगे जरूर, 250-300 किलोमीटर, 400-500, तो उसमें कहीं पे भी लॉन्ग चलाने के बाद में ऐसा लगता है कि यार थकावट सी है? नहीं, ऐसे कुछ तो नहीं लगता। अंदर से कार मेरी काफी कंफर्टेबल है, तो मुझे एज सच कुछ थकान या ऐसा कुछ नहीं लगता। इट्स कंफर्टेबल। यार इतना कंफर्ट तो अपनी स्कॉर्पियो और अपने जो डस्टर वाले हैं उन्हें भी तो मतलब यार काफी कंफर्टेबल है। इसका आप ये मतलब मत समझना कि यार हम तो BMW चलाते हैं, हमें भी 250 किलोमीटर के बाद थकावट होती है, तो थोड़ी होती है, बट इतना ज्यादा मतलब जिस हिसाब की ये गाड़ी है उसके हिसाब से काफी तगड़ा कंफर्ट है। तो मतलब अभी तक का आपका इतने दिनों में कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी का? सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से पूरी तरीके से या नहीं?
मेरा इतने दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहा है और मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली। प्लस अगर आपको बहुत ज़्यादा लोग लाइक 7 to 5 लोग नहीं कैरी करने हैं तो ये 3 से 4-5 लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। और प्लस आप इसको रफ एंड टफ तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई बहुत हाई मेंटेनेंस नहीं है। तो ओवरऑल मैं इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, ऑब्वियसली इसके कंपटीशन में बहुत सी कार्स आती होंगी, बट मेरे हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड विद माई कार। अभी 2020 में आपका 5 लाख का बजट हो तो आप इस पे जाओगे, क्योंकि ये जो गाड़ी तब आती थी लगभग 480 के करीब में ये गाड़ी पड़ती थी, जो कि अब थोड़ा सा फेसलिफ्ट आने के बाद में BS6 के बाद में थोड़ी बहुत महंगी 5 तक की पड़ती है। तो अगर आज के टाइम पे आपको ये गाड़ी लेना हो तो आप क्या ये लोगे, या कुछ ऐसा है कि नहीं यार मैं तो एस्प्रेसो लूंगी, स्विफ्ट लूंगी, ऐसा कुछ है? जैसे जिस तरीके से मैं इस कार को यूज़ करती रही हूँ, काफ़ी रफ तरीके से मुझे विलेज टू ट्रेवल ज़्यादा करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही गाड़ी लूँगी, क्योंकि स्विफ्ट वगैरह का मेंटेनेंस मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा डेलिकेट काइंड ऑफ कार्स है वो। तो मेरे हिसाब से आई विल प्रेफर दिस। थोड़ा एक ऊपर की है। तो कुल मिला जुला के जो ओनर है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। हालांकि जो सर्विस सेंटर है उससे आप उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं, सर्विस सेंटर से मैं इन जनरल नहीं सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता है कहीं के देखिए वो तो बिल्कुल सही बात है, कहीं कहीं पे टाटा में मारपीट भी होती है और कहीं कहीं पे टाटा की जो सर्विस है वो काफी बेहतरीन भी होती है। तो वो तो सर्विस टू सर्विस सेंटर जो है वो वेरी करता है। एक्चुअली इट्स अ न्यूट्रल थिंग कि वो डिपेंड करता है आप कैसी जगह पे जाते हैं। तो मैं जिस जगह पे आप जाते हो वहाँ का क्या सीन है वहाँ का, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, यू नो। तो सर्विस से थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस रहा है, बट उसके अलावा पूरी गाड़ी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और यही थी महक जी जिनकी ये गाड़ी थी, और ऑल द बेस्ट। हाथ नहीं मिलाएंगे कोरोना की वजह से। तो थैंक यू आपको इसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू AK अक्षत एंड हिट अ लाइक बटन, कॉज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो और आप भी जब गाड़ी चलाएं तो मेरी एक वो है कि आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सो गाइज, दैट वाज द वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड। इफ यस, यू नो व्हाट टू डू, गिव इट अ थम्स अप, दैट इज द लाइक बटन, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। वील मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड इफ यू ड्राइव अ कार, wear seat belt. If you ride a motorcycle, wear helmet.